Hello girls, welcome to our history class children. Girls, in the previous session, you heard about emergence of Islam from 7th century. You also heard about faith of rulers and subjects, for which you were told through 3 examples. The first was about in 711, in which Sindh was conquered by Muhammad Qasim. In 13th century, Turks and Afghans, they established Delhi Sultanate, and in 16th century, Mughal reign started in India. And even you were told about how was Islam practiced not only by the ruling elites but by the common man. बच्चों, पीछे सेशन में आपने सुना कि किस प्रकार 7वीं सदी में इस्लाम का आविर्भाव हुआ। इसके साथ ही साथ किस प्रकार से शासक अपना विश्वास धर्म में रखते थे। उसी परिप्रेक्ष्य में आपको 3 एग्जाम्पल बताया गया था, जिसमें 711 में सिंध मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा विजित हुआ। 13वीं सदी में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली और 16वीं सदी में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। So in this you were told that in all these 3 examples how the rulers they were ruling over the empire, and it was also told that they were the followers of Islam. ये सभी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और न केवल शासित वर्ग बल्कि सामान्य जनता भी इस्लाम धर्म के नियमों को मानते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज का टॉपिक है। विद दिस वी स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक नंबर 5C, names for communities. Topic 5 we are going through, and today's topic is names. Today's topic is names for communities. आज का विषय है समुदायों के नाम। Today's topic is names for communities. Students, generally the term Hindu and Muslim are labeled as religious community. आमतौर पर हिंदू और मुसलमान एक सामुदायिक के रूप में, जातीय समुदाय के रूप में, धार्मिक समुदाय के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। But children, such words were not used in the past. How we come to know? Because the historians, those who studied Sanskrit text and inscription dating between 8th and 14th century, they assessed that the word Muslim or Musalman was not used. शब्द जो हम मुसलमान वर्ड जिसको कहते हैं या मुस्लिम कहते हैं, तो इतिहासकार कहते हैं जिन्होंने संस्कृत ग्रंथ पढ़े, अभिलेखों का अध्ययन किया, उनके अनुसार 8 और 14 सदी के बीच इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता था। And those people were identified by the place they had come from. और उस समय लोगों को जिस स्थान से वे आते थे उसी स्थान से संबंधित नाम से संबोधित किया जाता था। उदाहरण के लिए जो टर्किश रूलर्स थे उन्हें तुरुश कहा जाता था। Turkish rulers were named as or classified as Turush, and the people of Tajikistan, they were known as Tajik. ताजिकिस्तान में रहने वाले लोगों को तजिक कहते थे और पर्शिया के लोगों को पारसी कहते थे। They were known as Parsi. Even such terms were also used for the new migrants. जो नए प्रवासी थे उन्हें भी इस प्रकार के नामों से संबोधित करते थे।
आप इसका एग्जाम्पल ले सकती हैं दैट द टर्क्स एंड अफगान्स दे वर नोन एज शक एंड द पीपल ऑफ ग्रीक दे वर नोन एज यवन। ग्रीक में रहने वाले लोगों को यवन और तुर्क और अफगान्स को शक के नाम से जाना जाता था, इसके बारे में आपने पीछे अध्यायों में पढ़ा है। And one more point was mentioned that the general term for migrant community was known as Mlech. म्लेच्छ भी एक समुदाय का नाम होता था। क्यों? क्योंकि वे धर्मशास्त्रों में जो भी नियम बनाए जाते थे उनको वो ज्यादा नहीं मानते थे और द लैंग्वेज जो वो भाषा बोलते थे वो संस्कृत भाषा से उसको नहीं लिया गया था। It is said that those people who were known as Milech, they were not following the norm or caste prevailing in the society, and even the language which was spoken by them was not derived from Sanskrit. So the words which were used by them, those words were not dignified. But such words rarely they denoted to a distinct religious community of Muslim in opposition to Hindus. और ये जिन शब्दों का प्रयोग करते थे वह शब्द उसमें हीन भावना छिपी रहती थी और इन शब्दों का प्रयोग कहीं भी इस प्रकार से नहीं किया गया जहां हिंदू के विपक्ष में बोला जाए। And the word Hindu was not only limited to a religious community. About this also you have heard in the previous sessions that the term Hindu was not related to a religious community. इसके बारे में आपने पीछे सेशन में सुना है कि हिंदू शब्द केवल धार्मिक समुदाय के अर्थ तक ही सीमित नहीं था। Clear? Now we'll start a new point. Point number 6, 5A, B, C is done. Point number 6, the growth of Sufism. Point number 6 is the growth of Sufism. Now we start a new point, the growth of Sufism, Sufi mat ka vikas. Children, in the previous session, you heard about the dominance of Islam and Caliphate in religious and political institutions. This means that when we speak about religious institution, it means that the administrative affairs were done according to Shariat. And for that, ulemas used to guide the rulers. And when we speak about political institution, about that you have already heard in this point. Point number C, I revise by giving you 3 examples. Clear? Now we'll speak about this point, children. So seeing to the dominance of Islam, there were some people who protested. इस प्रकार इस्लाम के बढ़े हुए वर्चस्व को देखकर कुछ लोगों ने उसका विरोध आरंभ कर दिया और उन विरोधियों में ही कुछ संत थे जिनका वैराग्य और रहस्यवाद की ओर वे उनका झुकाव बढ़ा। So among them only there were people who turned for renunciation and they wanted to know about the truth. They wanted to gain knowledge of God, about which you must be knowing. You can take the example of Gautam Buddha. Do you remember? गौतम बुद्ध में भी इसी प्रकार का था कि उन्होंने सांसारिक सुख का त्याग करके वे ज्ञान की खोज में सच जानने के लिए उन्होंने वैराग्य धारण किया। रहस्य को जानने के लिए उन्होंने वैराग्य धारण किया। So children, these people, those saints, they started criticizing the thinking, you can say, about the old practices. जो ये संत थे उन्होंने पुराने समय से चली आ रही जो प्रथाएं थी उसका इन्होंने विरोध किया। And even they criticized about the method of explaining Quran and Sunnah. उन्होंने जिस प्रकार कुरान का वर्णन किया गया and Sunnah means the tradition
ट्रेडिशनल कस्टम इन इस्लाम कम्युनिटी, किस प्रकार से ट्रेडिशंस परंपराएं हैं इस्लाम के अनुसार, उसका भी इन्होंने विरोध किया। और उनका अनुसार अकॉर्डिंग टू देम इट वाज सेड दैट इफ अ पर्सन वांट्स टू सीक सैल्वेशन ही शुड डिवोट हिमसेल्फ टू गॉड and for that he should follow the rules, the commands made by God. For them they used to say that they should follow the teaching of Prophet Muhammad, for whom they said that he was a person or he was a perfect human being. इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, उनके द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन करना चाहिए। जो प्रॉफिट्स हैं, जो नबी हैं, उनके जीवन को देखते हुए, उनके उदाहरण को लेते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। एंड इवन द सूफीज व्हाट दे डिड, they started explaining Quran according to their personal experiences. Means जो कुछ लिखा था उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, उसको उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन में उतारा, अपने जीवन के आधार पर उन सूफी संतों ने कुरान का एक्सप्लेनेशन दिया, विवरण दिया। So with this we'll take point number 6A, Khanqahs and Silsilas. Point 6A is Khanqahs and Silsilas. 6A का पॉइंट है खानकास एंड सिलसिला, खानकाह और सिलसिला। Children, by 11th century, Sufism changed in a movement. जो सूफीवाद था वो पूर्ण विकसित आंदोलन के रूप में देखा गया, जिसमें जो सूफी संत थे वो एक भवन जिसे हम खानका कहते थे, उन्होंने वहां रहना आरंभ किया। They started living in a building named as Khanka, and that was controlled by a teacher who was known as Sheikh, Peer or Murshid. Clear? So what they used to do? They used to enroll disciples. वो क्या करते थे? डिसाइपल, शिष्यों को जिन्हें मुरीद कहते हैं, उनको वे एनरोल करते थे और वो अपना एक वारिस भी नियुक्त करते थे। नॉट ओनली एनरोलिंग द डिसाइपल्स, दे यूज्ड टू अपॉइंट सक्सेसर्स फॉर विच यू कैन टेक द नेम, इट इज सेड एज खलीफा। सो द रूल्स वे मेड बाय देम, इस परिप्रेक्ष्य में वो नियम बनाते थे किस प्रकार मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना है। मीन्स द स्पिरिचुअल कंडक्ट code of conduct was made by them between the disciples and the teachers. शिष्य और गुरु के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, गुरु अपने नैतिक कर्मों से, अपने जीवन को उदाहरणों से कैसे शिष्य का जीवन परिवर्तित कर सकता है, इस परिप्रेक्ष्य में भी उसमें कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे। And children, by 12th century it is said that Sufi silsila began to organize in different parts of the world. 12वीं शताब्दी आते आते ये सूफी सिलसिला, वर्ड उसे हम चेन कहते हैं, ये धीरे धीरे इस्लामी दुनिया में बढ़ता गया। एंड अ लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसाइपल, गुरु और शिष्य के बीच ये एक प्रकार से लिंक बना। मीन्स सिलसिला मतलब चेन, एक गुरु, उसका शिष्य, उन्होंने उसको शिक्षा दी, फिर किस प्रकार से वह अपने जीवन से वह शिष्य दूसरों को शिक्षित कर सकता है, तो ये एक प्रकार का सिलसिला बन गया, चेन के रूप में ये कार्य होना आरंभ कर दिया। एंड इट वाज सेड दैट दिस चेन ओनली ट्रांसमिटेड स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग टू डिवोटीज, और यही जो चेन था वह अपनी शिक्षा द्वारा, अपने जीवन के कर्मों द्वारा, जीवन में जो कुछ वह मानते थे उस उदाहरण से वह लोगों को शिक्षा देते थे, और लोग उनके जीवन के नैतिक कर्मों को एक, आप कह सकते हैं, नमूने के रूप में अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते थे, और इनके प्रति लोगों की श्रद्धा रहती थी, लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते थे, उनको इतनी श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। सो व्हेन it is said that they were such secret people that the people used to come and take blessings by them. But when those sheikh,
डाई, जब ये शेख की मृत्यु हो जाती थी तो उनके मकबरे को श्राइन के रूप में, दरगाह के रूप में माना गया, पवित्र स्थल माना गया। एंड दैट ओनली एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज, और यही दरगाह ने लोगों में तीर्थ स्थान जैसे अनुभव करना, उसके पवित्रता का अनुभव करना, उस तीर्थ स्थान का दर्शन करना भी लोगों को सिखा दिया। सो बिकॉज द पीपल दे बिलीव, वाई, उन्होंने इस प्रकार उसको क्यों तीर्थ स्थान माना, उस मकबरे को क्यों तीर्थ स्थान घोषित किया। जैसा कि आपने कल सुना है कि मुस्लिम्स के लिए जरूरी होता उनके 5 पिलर्स में जो प्रिंसिपल्स हैं कि उन्हें जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, मक्का जाने, उनका मक्का जो उनका तीर्थ स्थल है वहां इन्हें एक बार दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो व्हाई दे कंसिडर्ड दैट टूम्ब एज अ holy place? Because the people, they believed that after death, those people who were considered as saint, they unite with God. उनका मानना था कि जो ये शेख, जो एक आप कह सकते हैं संत होते थे, मृत्यु के बाद वह प्रभु में लीन हो जाते हैं। सो विद दिस द शेख वे ऑनर्ड इन द फॉर्म ऑफ वली, शेख का वली के रूप में आदर करने की परंपरा यहीं से आरंभ हुई। So 6A point is clear, children. Now we'll move to point 6B. 6B, outside the Khanka. खानकाह के बाहर इस परिप्रेक्ष्य में इसमें कहा गया है कि खानकाह के बाहर किस प्रकार का जीवन था, क्यों इन्होंने विरोध करना आरंभ किया। So children, some mystics, they started a movement based on interpretation of Sufi ideals. ऐसे कुछ लोग थे जो रहस्यवादी थे, उन्होंने क्या किया, अपने जीवन में खानका का तिरस्कार कर रहस्यवादी जीवन आरंभ किया और इन्होंने फकीर के समान जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। और दे वे नोन एज बाय डिफरेंट नेम, इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता था। जो लोग खानका के बाहर थे उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे आप कह सकते हैं फकीर, मदारी, मलंग इत्यादि, इन्हें इन नामों से जाना जाता था। आपने सुना है वर्ड शरिया, शरिया मीन्स इस्लामिक लॉ। And those people, these people, they did not follow the rules according to Sharia. ये बेशरिया कहे जाते थे क्योंकि ये शरिया का उल्लंघन करते थे, अवहेलना करते थे, और जो लोग उसके नियमों को मानते थे उन्हें बाशरिया कहते थे। अर्थात बाशरिया का जो समुदाय था वो बेशरिया से बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि एक नियमों का पालन करता था और दूसरा क्या था, नियमों का उल्लंघन करता था। होप चिल्ड्रन यू आर क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।